Hello everyone, welcome back to Spoken English. Once again, good morning. This is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, fluently and effectively with a great authority and command in certain given situation. Guys, today we are going to have a wonderful speeches of wonderful man, what I call late Dr. APJ Abdul Kalam, President of Republic India. He was a great man, and I had an opportunity to be living, and I have an opportunity to of course anchor him also. So this lecture is going to be very interesting. So guys, a man of India, an educated man of India who goes to schools and colleges and universities and IITs and IIMs and meets his students, professors, vice chancellor and dictates in terms of language, in terms of knowledge, and that man is no one but Dr. APJ Abdul Kalam. I have personally met and seen him, and I have great love for him, and he was really a great person. Every speech is memorable. Every sentence he used to utter was full of pragmatic things, utility. For example, a man who went to European Parliament and gave a few minute lectures, and it was all applause and thunder. Let me just read the lines of APJ Abdul Kalam given in European Parliament. So here he says, when there is a righteousness in heart, there is a beauty in the character. When there is a beauty in the character, there is a harmony in home. When there is a harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is a peace in the world. This is a lecture, this is a line I have quoted, which Dr. APJ Abdul Kalam gave in the European Parliament. Guys, हम आपको अंग्रेज़ी बता रहे हैं कैसे बोला जाता है और कैसे हम बोलते हैं और कैसे सब लोग मंच पर आना चाहते हैं, कैसे लोग चाहते हैं कि हम प्रशंसा के पात्र बने या हम लोगों को प्रभावित करें. तो गाइस, APJ अब्दुल कलाम से अच्छा कोई भी ऐसा वक्ता नहीं हो सकता. इंडिया में तो खैर नहीं था, नहीं है अभी भी. He was a man with a tremendous knowledge, tremendous practical knowledge, and he was a man with a 46 PhD science degree. Remember, 46 degrees, PhD degrees of science. Enormous knowledge yet. Wow, wonderful. So I'm going to just understand who APJ Abdul Kalam was and or is through the speeches, through the meanings we have so far driven from his lecture. तो हम लोग तो स्मॉल स्टेटस के आदमी हैं और कलाम साहब तो बहुत ही हाई टावरिंग फिगर माने जाते हैं इस संसार में, इस साइंस के, इस आर्ट्स के. एज अ मैन ही वॉज अ मैचलेस. तो हम देखते हैं कि एक एक करके देखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम जो है, सबसे पहला तो वो एजुकेशनिस्ट थे. मैं B.Ed का प्रिंसिपल रहा हूँ 13 साल. मैं खुद जानता हूँ कि टैगोर हैं और रविन्द्रनाथ, ये विवेकानंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जितने इंडियंस हैं उनको आप ले लीजिए, उसके
और उनको एक तरफ पढ़िए, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 3 साल 4 साल प्रेसिडेंट उनका स्पीच ले लीजिए, आपको लगेगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज फार सुपीरियर सुपर। तो देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ही वॉज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी में ही APJ अब्दुल कलाम हर जगह बोलते भी थे, भाषण भी देते थे, इंग्लिश में ही देते थे। लेकिन अगर वो तमिलनाडु में बोल रहे हैं या उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के लोग भी उसी तरह से उनको समझ पाते थे जैसे तमिलनाडु के लोग। तो उनकी अंग्रेजी में भी एक मैजिक था, जादू था। और भारत का एक ही शिक्षाविद जो जिसको हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया जिनको हम कहते हैं, वो शख्स जो है वो विशाल काय हार्ट का आदमी था। तो हम ये देखते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का शिक्षा से क्या लेना देना था, और शिक्षा को क्या समझते हैं। तो एक चीज़, पहली चीज़ हम तो ये देखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम किसी भी क्लास में घुस जाते थे, यूनिवर्सिटी में भी चले जाते, वाइस चांसलर से मिल रहे हैं, और विदाउट फियर, उनके अंदर किसी तरह का ये नहीं था। विथ स्माइलिंग फेस ही यूज्ड टू मीट एवरीवन। तो उन्होंने, अच्छा, उनके जो मंत्र होते थे, जैसे नॉलेज किसको कहते हैं, लेट मी सी व्हाट इज नॉलेज। ऐसा कोई नहीं पूछ सकता कि व्हाट इज नॉलेज। वो स्कूल में बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज नॉलेज, और वहाँ पर जवाब भी मिलता है, जवाब भी देते हैं व्हाट इज नॉलेज। और जो डिफिनीशन में he gets answer in definition, ask question in definition. For example, knowledge equal to what he used to say, knowledge equal to creativity. He says knowledge equal to creativity plus righteousness plus courage। ऐसा डिफिनेशन अभी तक किसी ने नहीं दिया, किसी भी नहीं दिया। इतने शिक्षा भी अभी तक है अमेरिका का या कोई इंडिया का, किसी ने इस तरह से जो है एजुकेशन का या नॉलेज बराबर क्या होता है, किसी ने नहीं दिया। इतनी पकड़ शायद किसी जो है आदमी के पास हो, साइंटिस्ट के पास हो, तुरंत बता दिया नॉलेज क्या चीज़ है। नॉलेज क्रिएटिविटी का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंस, क्रिएटिविटी, राइटियसनेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करेज। तो जो भी नॉलेज है, अगर उसमें करेज नहीं है तो देयर इज नो नॉलेज। अगर उसमें राइटियसनेस नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। क्रिएटिविटी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इफ़ यू हैव नो क्रिएटिविटी, यू जस्ट पुट वॉट एवर यू हैव नोन और वॉट एवर यू हैव until now got up by heart, वो नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब होता आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो आप बाहर निकालो उसमें कुछ नया पढ़ होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। वो क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नयापन उसमें होना चाहिए। यही नहीं कि वही चीज़ हो आप कहिए। तो नॉलेज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
देयर इज सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसके पहले जब नेट एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो ये स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में सब जगह रखा जाता था। कोहिमा में रखा गया और फिर इसके बाद जो है असम में रखा जाता, गुवाहाटी में रखा जाता था। स्टूडेंट्स बढ़ने लगे तो यूनिवर्सिटी ने सोचा अब कॉलेजेस में भी रखा जाए। तो वाइस चांसलर ने मीटिंग की कि किस कॉलेज में रखा जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन एंड द सेंटर सुपरिटेंडेंट मस्ट बी ए मैन ऑफ ट्रस्ट। तो लोगों ने कहा कि यू कैन ट्रस्ट डॉक्टर मौर्य एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट द सेंटर ऑफ नेट एग्जामिनेशन इन माई कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी ट्रस्टेड मी। तो यह राइटियसनेस है, बिकॉज यू हैव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव गिवन लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पास पेपर दे दिया गया, ये दे दिया गया, अब आप उसका करते क्या है? तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि आप उसका सही यूज़ करें। और इसके बाद करेज क्या होता है? अगर आप ज्ञान प्राप्त किए और आपके पास करेज नहीं है, करेज किस चीज़ का होना चाहिए? साहस इस चीज़ का होना चाहिए कि आप जो पढ़े हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको बोल सकें। करेज टू थिंक डिफरेंटली, आपको ये साहस होना चाहिए कि आप जो है लोगों से हट कर सोचें। करेज टू थिंक डिफरेंटली और करेज टू इनोवेट, कुछ नई चीज़ करने की का साहस को करेज बोलते हैं। और प्रॉब्लम्स से लड़ने का करेज, समस्याओं से लड़ने का करेज, और किस चीज़ का करेज? और जो है वो सही को सही कहने का करेज, और जो एक नई चीज़ है युवाओं में उसको बढ़ाने का करेज। तो अगर आपके ज्ञान में करेज नहीं है, साहस नहीं है, राइटियसनेस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो नॉलेज नहीं है। तो दिस इज APJ Abdul Kalam. He's not an ordinary man. He could go anywhere. अरे मैंने तो देखा IIT में जा रहे हैं, प्रोफेसर बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, लड़के जो है एक सेकंड में वो क्या है ये वो बता रहे हैं। ऐसा वंडरफुल आदमी तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। और इन ए रियल सेंस ऐसा आदमी अब हिंदुस्तान को मिलना बड़ा मुश्किल है। हमने डॉक्टर राधाकृष्णन को देखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन भी पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन जितना नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज डॉक्टर कलाम को था, किसी को नहीं था। तो दिस इज व्हाट APJ अब्दुल कलाम। एंड बच्चे जो है वो कलाम के क्लास में जाते थे, पूछते थे कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ें। और तो कलाम साहब कहते थे कि देखो, मंत्र देते थे, मंत्रा, दीज आर द मंत्रास। तो वो क्या कहते थे कि यू शुड हैव ग्रेट एम। अब कहते थे बोलो, जस्ट गो ऑन। हाँ, क्या कहते थे? आई विल हैव ग्रेट एम। और बच्चे बोलते थे आई विल हैव ग्रेट एम। और फिर कहते थे आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। बच्चे बोलते थे आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। फिर कहते थे आई विल परसिवरेंस, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड बच्चे बोलते थे। और फिर बोलते थे आई विल परसिवरेंस, आई विल परसिवर एंड सक्सीड, आई विल परसिवर एंड सक्सीड। तो ये 4 चीज़ मंत्र बताते थे, सब बच्चों को बताते थे। तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं रहा जो बच्चों को जा कर के उसको ये बताता ये करो तो सफल हो जाओगे, 100% गारंटी। और आज भी है। ये 4 चीज़ें आप जान जाइए, आप उस पर काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी द ग्रेटेस्ट वन। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आई विल हैव ग्रेट एम। कलाम साहब कहते थे कि ड्रीम, आप सपना देखो, ड्रीम। और जो सपने होते हैं वो सपने होते हैं,
और उसका सबसे बड़ा जो लक्षण होता है कि सपने जो है आपको सोने नहीं देंगे जब तक कि आपको रियल जो है ड्रीम में वो नहीं ले जाए। जिस ड्रीम की आप खोज करते हो तब तक, जब तक कि वो सपना आपको नहीं मिल जाता है तब तक आप सो नहीं सकते। ड्रीम नेवर अलाउज यू टू ड्रीम, दैट इज़ वन थिंग। तो ड्रीम एंड ड्रीम हाई, और सपना देखो तो ऊंचा देखो, ऐसा नहीं कि साहब का चपरासी फला ये ढका, कुछ नहीं। आप सोचो कि हम बहुत अच्छा करेंगे और आपको अच्छा करना ही है और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो दैट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हिज नेम वाज APJ अब्दुल कलाम। He was a man, and when he died, he was a great man. Dr. Kalam was a really great teacher. Personally, I felt empowered in his presence. मैं आधे घंटे उनके साथ था और मैंने एंकरिंग भी थोड़ी देर की, मिला भी, और 2 मिनट ऑनलाइन भी था उन पर। PTI ने फ़ोटो भी खींचा। द इंटायर पीरियड आई फेल्ट एम्पावर्ड। मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी ताकत आ गई। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मीट ए ग्रेट टीचर। आप जब किसी महान शिक्षक से मिलते हो तो विद्यार्थी क्या बोलते, उनका भी सीना जो है चौड़ा हो जाता है। आई वॉज एम्पावर्ड, इनफैक्ट आई वॉज एम्पावर्ड to get Dr. APJ Abdul Kalam at my college. So this was the man. So guys, and एक चीज़ और कहते थे APJ Abdul Kalam, don't allow the problems, कहते थे don't allow the problems to be captured. Don't allow the problem to be your captain. डॉक्टर साहब ये कहते थे कि जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दे आर टेम्पररी. यू शुड बी ग्रेटर, you should have more, you should be stronger than your problem is, and never allow your problem to come over. You are just like a hammer and they are just like a nail. You just hammer them and they will go away. So problems are no. If you are there, problem must not be seen there. So such was a magic personality of Dr. APJ Abdul Kalam. So guys, this is what APJ Abdul Kalam was. There are so many speeches, so many stories, so many inspiring talks are there, and his book Wings of Fire. You read Wings of Fire. हम आपको पढ़ा रहे हैं कैसे स्टेज पर बोला जाए, कैसे प्रभावी ढंग से बोला जाए। तो स्टेज पर बोलने के लिए आपको मोटिवेट भी होना पड़ता है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे आप अच्छे से बोल भी नहीं सकते। तो मोटिवेशन इज़ ऑल्सो, एंड APJ अब्दुल कलाम वॉज ऑलवेज ए पर्सन ऑफ मोटिवेशन। वो किसी के लिए मोटिवेशन हो सकते थे, छोटे छोटे बच्चे। तो इसलिए इनका आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, और इनके विचार से जो चीज़ें हमने बताया ये इसको आप लोग देखिए, और हम आगे कल फिर एक नए आदमी के ऊपर बात करेंगे। वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके भी कुछ स्पीचेस हम देखेंगे, और ये सारी स्पीचेस जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको इंस्पायर करेंगी
to speak out something when you are on the stage. तो ऐसे एक दिन में, एक लाइन में और छोटे छोटे इससे बोलने नहीं आता। आप मेरे साथ बने रहो, देखो आप खुद इंस्पायर होगे और आप अच्छा से बोलना शुरू करोगे। अच्छे लोगों के संगत में आने में, अच्छी भाषा के संगत में आने पर आप ऑटोमेटिकली आप अच्छे जाओगे, अच्छी पकड़ बनेगी भाषा पर, लैंग्वेज पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। चाबी दिए हैं क्या सर? हाँ हाँ, नहीं दिए क्लास दे